नमस्कार दर्शक मित्रों, मेरा नाम है शुभम पांडे और आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज़। कुछ ही देर में यहाँ पर इस वक्त हमारी टीम, नेशन प्लस न्यूज़ की टीम KPGU में मौजूद है, जो बड़ौदा में एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसका नाम है हैकाथॉन। हैकाथॉन एक ऐसा इवेंट है जिसमें कई सारे देश की समस्याओं से यहाँ पर जो छात्र हैं उनके बारे में सोचते हैं, उनके समाधान के बारे में सोचते हैं। और इस इवेंट में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर थोड़ी ही देर में उपस्थित होने वाले हैं और आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं और वो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं। वो बड़ौदा आ चुके हैं और KPGU यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, जहाँ पर वो छात्रों से बात करेंगे, कई सारे समस्याओं के बारे में और उनके समाधान क्या हो सकते हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव KPGU बड़ोदरा में इस वक्त आ चुके हैं, जहां पर वो हैकाथॉन इवेंट को यहाँ पर संबोधित करेंगे, जहां कई सारे छात्रों से वो वार्तालाप करेंगे, कई सारे समस्याओं के बारे में और उनके समाधान क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में भी वो बातचीत करेंगे। Very good afternoon to everyone. The country has 80 crore youth. They are below 35 years of age. If youth have the skill, they can change the destiny of the country. With this wonderful saying by our Prime Minister Honorable Shri Narendra Modi, I, Dr. Prachi Pandey, Director Innovation, Vadodara, on behalf of campus, heartily welcome the Chief Guest, Honorable Shri Ashwini Vaishnav, Minister of Railways, Communications, Electronics and Information Technology, Government of India. Honorable Sri Shailesh Bhai Mehta, MLA Vadodara. Shri Kaushal Dave, State Coordinator, Yuva Board, Gujarat. Shri Ashok Bhai Patel, President, Jilla Panchayat, Vadodara. Shri Ashwin Bhai Patel, Jilla Pramukh, BJP. Shri Parakram Singh Jadeja, Vadodara Jilla Prabhari. Honorable Chairman Dr. Kiran and Pallavi Patel, Global University, Shri Dhruv J. Patel. Honorable Provost Dr. Jaimin Bhalani, Registrar Dr. Kehul Shah, Deans and Directors of KPGU, learned faculty members, innovators and dear students. We express regards and gratitude to the invited esteemed guests for their valuable presence in our campus. Let's have a round of applause for the guests who have spared their valuable time in spite of their busy schedules. The ray of light is the ray of hope. For invocation to Almighty, I request the dignitaries to please light the lamp. इस तरफ ब्रह्म रूपम ज्योति प्रभु
Thank you very much. Dr. Kiran and Pallavi Patel Global University seeks to be an organization of universal eminence, serving the cause of higher education, research, innovation, and services to the mankind. Also dedicated to support and fulfill the dreams of enthusiastic innovators to become successful entrepreneurs, and also to contribute in the mission to step ahead in the direction of Atmanirbhar Bharat. The university encompasses 9 university faculties such as engineering, pharmaceutical sciences, physiotherapy, science, Ayurveda, nursing, MBA, along with 6 centers of excellences to support higher education and research. The 26 acres of green campus with landscapes, gardens, and state-of-the-art infrastructure for academics and research and skill building functions empowers the students to become competent individuals. The student innovators of university has developed 121 innovative products, received research funding of ₹120 lakhs from AICTE, student startup and innovation policy, student open innovation challenges and good cost. The student and mentors have also filed 36 patents in Indian Patent Office. Besides government schemes, recently KPGU Associated Incubator Krishna Educational Foundation has been selected for Startup India Seed Fund Scheme for incubators. For that, all the innovators should be happy that they could be funded well for development of their proof of concepts into the actual startups. Fortunately, today more than 800 innovators and mentors from all over Gujarat are developing innovative products, which are industry need best products in the KPGU campus. They are working continuously for 36 hours during Azadi Ka Amrit Mahotsav Hackathon 2022 in coordination with Student Startup and Innovation Policy Cell, Education Department, Government of Gujarat. To motivate and enlighten us, we are extremely privileged to have with us Honorable Shri Ashwini Vaishnav, Honorable Minister of Railways, Communication, Electronics and Information Technology, Government of India. We express immense gratitude to you, sir, for visiting us, for guiding and interacting with students and faculty members of university. I request the Honorable Chairman, KPGU, Shri Dhruv J. Patel, to kindly do the honors to felicitate Honorable Shri Ashwini Vaishnav ji. अश्विन भाई बोलो तो चलेगा। दो अश्विन भाई हो गए इधर। आ जाओ फरे को। Now I request Honorable Kaushal Dave, State Coordinator Yuva Board, to do the honors to felicitate Honorable Ashwin Vaishnav ji. Now I request Yatin Bhai Nayak to kindly felicitate Ashok Bhai Patel, Jila Panchayat Pramukh. Thank you very much. I request Shri Dikshit Bhai Dave to kindly felicitate Kaushal Dave, State Coordinator Yuva Board. I request Shri Kaushal Bhatt to kindly felicitate Ashwin Bhai Patel, Jila Pramukh BJP. I request Shri Harshal Sisodia ji to kindly felicitate Shri Sailesh Bhai Mehta, MLA Vadodara.
request Shri Biren Patel ji to kindly felicitate Parakram Singh Jadeja, Vadodara Jilla Prabhari. Thank you very much, sir. Honorable Shri Vaishnav is a technocrat from the prestigious IIT Kanpur, a management professional from Wharton School of the University of Pennsylvania, a successful bureaucrat from Indian Administrative Service, who did many extensive efforts. Worth to mention is for safety measurements for people of Odisha from cyclone, and now sir is a visionary leader of Government of India. I cannot summarize the accomplishments of Honorable Shri Vaishnav in few words. The nation and the citizens are proud to have such learned and skilled leaders of India who are always ready to devote their precious time and energy to devote for students, innovators and mentors for their bright future. Thank you very much, sir, for sparing your valuable time for our students and innovators today. So we should be very much thankful that we are being guided by such leaders of India, and we should be proud of such mentors. So we are very much eager to listen to you, sir. On behalf of all, I request you to kindly address the audience. टेक्नोलॉजी हमेशा चेक कर लेनी चाहिए पहले। शाम का टाइम है, थोड़ी सी दिन भर की थकान। आज कितनी क्लास की है? क्या क्लास थी? क्लास नहीं थी? सोए दिन में? हाँ। फ्रेश माइंड अभी क्या बात करना चाहोगे? भाषण सुनना है? नहीं। किसने बोला? वेरी गुड, इसके लिए ताली बजाओ। प्रेजेंटेशन चलेगा, इसके लिए भी ताली बजाओ। सेम करते हैं। चलो एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन रखेंगे। आपके साथ मैं शेयर करूंगा किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप सबके भविष्य के बारे में सोच के देश का क्या निर्माण कर रहे हैं, किस तरह से निर्माण कर रहे हैं, किस तरह से नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, किस तरह से नए इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, वो आप सबके सामने करीब 1 घंटे का रहेगा अपना प्रेजेंटेशन। बीच में कभी भी आप हाथ उठा के क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर उसके बाद में लास्ट में जो मर्जी हो वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। राइट? अपने कितने लोग इंजीनियरिंग के यहाँ पे? बीटेक वाले? अच्छा, नॉन इंजीनियरिंग में? नर्सिंग, मेडिकल आउटसाइड। अच्छा, आप लोग कौन से डिसिप्लिन से नॉन इंजीनियरिंग में? फार्मेसी के। फार्मेसी के कितने? काफी है। ओके। फार्मेसी का कितने साल का कोर्स होता है? 4 साल का है। फाइनल ईयर के कितने लोग हैं यहाँ पे? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर। फाइनल ईयर की कोई नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। हैकाथॉन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? क्या किया आपने हैकाथॉन में? बताओ। हाँ, we are actually making student life cycle management portal जो बच्चों को क्या है वो मार्गदर्शन के लिए काम आ सकती है। वेरी गुड, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट लिया है। गुड। और कौन पार्टिसिपेट कर रहा है हैकाथॉन में? देखिए आप क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो? हमारा सिस्टम है कि जो रूरल एरिया और आंगनवाड़ी से उसके अंदर जो मतलब रियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आते हैं वो जानने के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मतलब
इनोवेशन ला सकती है, और मतलब टेक्नोलॉजी स्टडी के अंदर क्या इनोवेशन ला सकती है उसी के अंतर्गत। वो तो स्टेशन में भी लग सकता है, वो तो स्टेशन में भी लग सकता है। एक्चुअल में कितने लोग आ रहे हैं, चालू करें फिर स्टेशन की बात। डन। क्या नाम है आपका? आप रेलवे का एक नई इनोवेशन पॉलिसी करीब अपने पिछले मार्च या अप्रैल महीने में भी लगी थी, उसको पक्का जाके स्टडी करना, किस तरह से उसमें जुड़ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जुड़ सकते हो, राइट। जैसे आपने स्टेशन में कितने लोग आ रहे हैं, या फिर कोई दूसरा कोई भी विषय हो रेलवे से रिलेटेड, उस पे जुड़ना चाहो जुड़ सकते हो। मैं आपके सामने रखूंगा कुछ पॉइंट्स जिसमें देश के निर्माण की बात, भविष्य के निर्माण की बात। आप में से कितने लोग 25 साल से कम उम्र के हो? सारे। कितने लोग 21-22 साल की उम्र से कम हो? करीब करीब सारे। 20 से कम कितने हो? अब देखो, 2047 में जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, आप लोग जनरली सबके सब करीब करीब 45 साल, 45 से 50 की एज के होंगे, राइट? होंगे? डर लगता है। 45, 50 ज्यादा खराब नहीं है, ठीक ठाक ही है। 45-50 डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वाला पीरियड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे पार्टी हो, चाहे कंपनी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे मेडिकल हो, हॉस्पिटल हो। 45 से लेके 55 वाला जो पीरियड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स होते हैं, एग्जीक्यूशन वाले होते हैं, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। इस एज ग्रुप में आप लोगों का जब 2047 में आप लोग होंगे जो कि मैक्सिमम भारत के डिसीजंस लेंगे। आपकी जो जनरेशन है, ये जनरेशन होगी जो कि भारत के मैक्सिमम डिसीजंस लेंगे। आपके एस्पिरेशंस हैं, आपकी ड्रीम्स हैं, आपने दुनिया देखी है। आप सब के सब ऐसे हो जिन्होंने यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, इंटरनेट, मोबाइल, स्मार्टफोन, इसके साथ पैदा हुए हो। हम लोगों की जो जनरेशन थी, हम लोग इतने एक्सपोजर नहीं था हम लोगों को। आप लोगों को बहुत अच्छा एक्सपोजर है, दुनिया देखी। तो आप लोगों के मन में आता है कि हमारे यहाँ भी जो कुछ भी हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे हाईवेज हो, वो सब के सब वर्ल्ड क्लास हो। ये एस्पिरेशन है कि नहीं? कितने लोगों के हैं? कितने लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ भी रेलवे स्टेशन, ट्रेन वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए? सभी सोचते हैं? कोई ऐसा है जो नहीं सोचता है कि नहीं होनी चाहिए? शायद ही कोई होगा, नहीं है। गुड। एस्पिरेशनल जनरेशन हो आप सब। आप सबको एस्पिरेशंस है, एम्बिशन है, कुछ कर दिखाने की क्षमता है, और एक कॉन्फिडेंस है। एक कॉन्फिडेंस है क्योंकि आपने देखा है कि इस देश में बहुत कुछ हो सकता है। आपकी जनरेशन के हिसाब से अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है हम हर एक फील्ड में वर्ल्ड क्लास चीजें बनाएं। जब मोदी जी ने देश का नेतृत्व संभाला, उन्होंने ये प्रोसेस हर सेक्टर में चालू किया। स्पेस हो, मेडिकल हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट्स हो, हाईवे हो, हर सेक्टर में अपने जितने भी उनके मंत्री मंडल में साथी थे, सभी को एक ही चीज बोली, हर एक काम जो भी करना, जो भी आप करना चाहो, उसको वर्ल्ड क्लास लेवल पे लेके जाना। रेलवे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले चालू होता है, रेलवे की बात जब भी करते हैं तो स्टेशन की बात आती है, राइट? स्टेशन की बात आती है क्योंकि अपना एक्सपीरियंस शुरू ही होता है स्टेशन से। हम जब भी रेलवे से जर्नी करना, कितने लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं? करीब करीब सभी। कुछ ही लोग हैं जो रेलवे से ट्रैवल बिल्कुल नहीं करते, राइट? कितने लोग गांवों में पैदा हुए? मैं तो गांव में पैदा हुआ था, छोटे से गांव में पैदा हुआ था। गांव में पैदा होकर शहर जाते हैं तो शहर जाते हैं तो बस से जाते हैं या रेल से जाते हैं, राइट? रेलवे स्टेशन इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे स्टेशन अपनी एंट्री है। रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाना है,
रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाना है, बहुत डीप थिंकिंग की जरूरत है। आपके सामने ये न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन, नया डिजाइन। अभी पुराना डिजाइन तो देखा होगा लोगों ने, शायद फोटो में देखना है, तो आज गूगल करना है, यूट्यूब पे जाना है, इंस्टा पे जाना। ये नया डिजाइन है जिसका आज टेंडर निकल गया है। आप देखो, ये दोनों जो डोम्स हैं, इनके नीचे ट्रैक्स हैं, इनके नीचे ट्रैक्स, प्लेटफॉर्म्स, वो सब इसके नीचे है। ये कंप्लीट एलिवेटेड रोड, चारों तरफ ट्रैफिक बिल्कुल भी जाम नहीं होना चाहिए, राइट? पूरा इस थॉट प्रोसेस से बना है कि कहीं पर भी आज के हिसाब से नहीं, आज से 25 साल, आज से 50 साल के बाद में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। अब हर जगह अंदर रूफ प्लाजा, खूब अच्छी ओपन स्पेस हो, अच्छा फूड कोर्ट हो, वेटिंग एरिया हो। जिनके बच्चे हैं, आप लोग तो अभी नौजवान हो, यहाँ से निकलोगे उसके बाद में फिर शादी वादी, फिर बच्चे, तो जब बच्चे साथ ट्रैवल करते हैं तो कब एक इधर दौड़ रहा होता है, एक उधर दौड़ रहा होता है, राइट? उनके लिए खेलने की अलग से जगह हो, प्रॉपर हर जगह की। अब गुजरात में कोई स्टेशन है तो वहां घाघरा तो मिलना ही चाहिए ना स्टेशन पे, ना नहीं मिलना चाहिए, थेपला भी मिलना चाहिए, फाफड़ा भी मिलना चाहिए। तो लोकल एरिया की लोकल प्रोडक्ट्स के लिए अलग से वहां पे शॉप्स रहे। हर तरह की सोच के साथ ये स्टेशंस का डिजाइन है। अहमदाबाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? देखें, जिनको अच्छा नहीं लग रहा है देखें कौन है। उसके पास वाले लोग उसको परेशान करने लग जाए। गुड। सेम डिजाइन के प्रिंसिपल्स, प्लेटफॉर्म और ट्रैक्स के ऊपर एक रूफ प्लाजा, और रूफ प्लाजा ये आगे जाएंगे हम जब कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आ गई। अगर ये सारा हिस्सा इस तरफ का है और बाहर का एरिया जितना भी, उसके ऊपर मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स और चारों तरफ एलिवेटेड रोड, एक बिल्कुल पुल जैसे फ्लाईओवर होता है वैसा। इन सब में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस दिया गया है, क्योंकि करीब करीब 2000 स्टेशन बनाने हैं और अभी चालू कर रहे हैं अपन 200 स्टेशन से। सुबह तक 199 थे, वो बीच में आनंद वालों ने रोका और कहा कि हमारा भी करना है, तो फिर 199 प्लस 1 200 हो गए। आनंद स्टेशन भी ऐड हो गया इसमें, तो 200 स्टेशन अभी शुरू में ले रहे हैं। उसके बाद में और ये कंप्लीट करके और आगे जाएंगे। कंप्लीट नए तरीके से कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी। कैसे? आप ये येलो देख रहे हो, ये सारे प्लेटफॉर्म्स है, येलो प्लेटफॉर्म्स है और ये बीच में ट्रैक्स है। कंप्लीट मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन होगा, स्ट्रक्चरल फाइबर्स लेके, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स लेके, प्लेटफॉर्म के ऊपर पिलर्स लगाए, उनके ऊपर एक रूफ बनाई, एलिवेटेड रोड बनाई चारों तरफ, एक और लेवल रूफ का, उसके ऊपर और उन्हीं पिलर्स को ऊपर लेते आए और कंप्लीट फाइनल रूफ, और चारों तरफ बड़े मल्टी मॉडल कॉम्प्लेक्स। करेक्ट? ये कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जब आती है, आपने वीडियो में देखा होगा कई बार, अगर जिनको इंटरेस्ट है थोड़ा सा इंजीनियरिंग का, कंस्ट्रक्शन का, वो लोग वीडियो देखना। दुनिया में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें 30 दिन के अंदर 5 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। मतलब 15 घंटे के अंदर पूरा का पूरा रेलवे का स्टेशन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। टोक्यो रेलवे स्टेशन आपने नाम सुना होगा। टोक्यो में, जापान में बहुत अर्थक्वेक्स आते हैं। अर्थक्वेक्स के कारण जो प्रॉब्लम आ रही थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया उन्होंने? कैन यू इमेजिन? इंजीनियरिंग का कमाल है। देखो,
4 किलोमीटर लंबा स्टेशन है एरिया, पूरे के पूरे स्टेशन एरिया को लिफ्ट किया जैक लगा के, हाइड्रोलिक जैक लगा के, और उसके नीचे बेयरिंग्स डाले, उसके नीचे बेयरिंग्स डाले, जैसे कि अर्थक्वेक अगर आए तो वो बेयरिंग्स हल्के हल्के मूव कर जाएंगे, स्टेशन मूव नहीं करेगा। इस तरह की टेक्नोलॉजीज दुनिया में, और मोदी साहब ये कहते हैं कि ये दुनिया की जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज है उन सबको लेके आओ। ये जो कंस्ट्रक्शन की आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, ये वर्ल्ड की आज की बेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड की बेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है। ये सब हम इन सब स्टेशंस में, इन सब कंस्ट्रक्शन में लेके आ रहे हैं। ये उसका पूरा व्यू आप हर जगह देखोगे, जितने भी शहर के मेट्रो हो, हाई स्पीड हो, बीआरटी हो, उन सब को इसके साथ जोड़ा जाता है। ये हाई स्पीड लाइन है, ये वाली जो पीछे देख रहे हो आप, हाई स्पीड लाइन है, राइट। साथ में मेट्रो का स्टेशन, साथ में बीआरटी, ये कंप्लीट एलिवेटेड रोड। और जो भी शहर की विरासत है, हजारों साल पुरानी, कई सौ साल पुरानी, उस विरासत को जोड़ के, उसको बचा के, उसको एम्पलीफाई करके, तो उसको बचा के, उसको जोड़ के, उसको ध्यान में रखते हुए हर चीज करनी है। ये उसका डिफरेंट व्यू कंप्लीट आप देख रहे हो, एलिवेटेड रोड, ये रोड सारी एलिवेटेड रोड, करेक्ट। तो मैं आपको एक मजेदार स्टोरी बताता हूँ। पिछले साल जुलाई में पीएम साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और कहा कि 500 स्टेशन के आसपास पे काम करना है, पहले 50 का डिजाइन लेके आओ। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की, करीब 2-2.5 महीने तक मेहनत करके लेके गए हम प्रेजेंटेशन। पीएम साहब ने करीब 2.25 घंटे उस प्रेजेंटेशन को देखा, डिटेल में देखा, एक एक, मोदी साहब ने एक एक स्लाइड पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे, कई पूछा। 2-2.25 घंटे के प्रेजेंटेशन के बाद में अप्रूव नहीं हुआ। पीएम साहब खुश नहीं दिख रहे थे, उन्होंने ओके नहीं किया कि आगे बढ़ो, ऐसा नहीं किया। हम लोग एकदम उदास वहां से बाहर निकले, मीटिंग से बाहर निकले और सोच रहे कि क्या चक्कर है, क्या कमी रह गई, इतना मेहनत किया, इतना ध्यान दिया, क्या कमी रह गई। रात में 11 बजे पीएम साहब का फोन आता है, अश्विनी, जो तुम्हारी टीम ने किया है काम, वो आज के लिए तो अच्छा है, लेकिन आगे के 50 साल का सोच के बनाओ, तब जाके होगा। क्योंकि हमारे नौजवानों के एस्पिरेशंस आज के एस्पिरेशंस नहीं है। वो लोग आगे के 25 साल 50 साल के हिसाब से शहर कैसे बढ़ेगा, लोगों के टेक्नोलॉजी के क्या चेंजेस आएंगे, किस तरह का परिवर्तन आएगा, वो सब सोच के बनाओ। ऐसा देश का नेतृत्व है जो कि इतना बारीकी से, इतना आगे सोचता है, जो कि इतने इस तरह से सोचते हैं कि हमारे नौजवानों को आज जो चाहिए वो नहीं, आगे तक जो चाहिए वो सब, जो आज जो चाहिए वो भी, और आगे जो मिलना चाहिए वो सब भी, इसमें प्लानिंग करो। हम सब वापस गए, फिर 2 महीने लगे करीब, कंप्लीट नए आर्किटेक्ट्स लेके आए, आर्किटेक्ट्स के साथ बैठे, स्ट्रक्चरल डिजाइनर्स के साथ बैठे, ट्रांसपोर्ट वालों के साथ बैठे, ट्रैफिक वालों के साथ बैठे, बैठ के वापस सारी डिजाइन बनाई, सारी डिजाइनें बनाई। फिर एक नया 2.5 घंटे का प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें पीएम साहब ने कहा यस, नाउ गो अहेड, अब ये 50 साल के हिसाब से डिजाइन है। तो अब जितने भी आप स्टेशन देखोगे, चाहे बड़ा शहर, छोटा शहर, चाहे बहुत बड़ा स्टेशन या छोटा स्टेशन, हर एक स्टेशन पे एक सुंदर रूफ प्लाजा। आप कितने लोगों के शहरों में या गांव में स्टेशन है, राइट? स्टेशन के दोनों तरफ शहर होता है, लेकिन एंट्री जनरली एक ही तरफ होती है। उससे क्या होता है, शहर पूरा डिवाइड हो जाता है, राइट? कितनी तकलीफ होती है। एंट्री सिर्फ एक तरफ है, रेलवे लाइन बीच में से जा रही है, आधा शहर इधर रह गया, आधा शहर इधर रह गया, करेक्ट? तो
शहर को जोड़ने वाला बनना चाहिए, शहर को डिवाइड करने वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं पीएम साहब। तो दोनों तरफ एंट्री होनी चाहिए और एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का अच्छा रास्ता होना चाहिए, सुगम रास्ता, कोई तकलीफ नहीं आए उसमें बीच में। दिव्यांग जो व्हील चेयर पे आ रहे हैं हमारे साथी, उनको भी कोई तकलीफ नहीं आए। हर तरह का सोच के बनाओ। तो अब हर स्टेशन पे जो डेवलपमेंट चल रहा है उन सब में इसी तरह का ध्यान है। फिर ग्रीन बिल्डिंग होनी चाहिए, हर एक जगह सोलर, हर एक जगह एनर्जी कंजर्वेशन, बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक सोच। इन सब के स्टेशंस के एस्टिमेट्स बन गए, डिजाइन्स बन गए, सैंक्शंस हो गए और टेंडर निकल गए और कई जगह काम चालू हो गया। ये भी अहमदाबाद कि इसके अलग अलग व्यूज, अंदर रूफ प्लाजा, ये बाहर से मेन व्यू। ये सूरत, सूरत में स्टेशन के बिल्कुल पास में बस स्टैंड है, ये वाला बस स्टैंड, राइट। तो बस स्टैंड, बस स्टेशन और स्टेशन, रेलवे स्टेशन दोनों इंटीग्रेट होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। कितने लोग सूरत से यहाँ पे, सूरत स्टेशन पे बस स्टैंड एकदम पास में या दूर है? एकदम बाजू में, बरोबर है, एकदम बाजू में છે। કેમ છો? खूब मजामा ना, थोड़ा सा मजामा। गुड सार। तो ये कैसा लगा? बहुत अच्छा है, खूब सरस છે, एकदम सरस છે। देखो ये पूरी एलिवेटेड रोड, लोग कहते थे कि कब बनेगा कब बनेगा, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर ने मोबिलाइजेशन चालू कर दिया है, राइट। 10-15 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था, करीब 6-7 महीने पहले डिजाइन अप्रूव हुई थी, टेंडर हुआ, टेंडर के बाद में अप्रूवल हुआ, अप्रूवल हो के अब इस पे काम चालू हो गया है। तो अगेन सेम एलिमेंट्स, ये कंप्लीट रूफ प्लाजा बन रहा है पटरियों के ऊपर, पटरियों के बाहर वाला एरिया, इसमें मल्टी मॉडल हाई राइज बिल्डिंग और चारों तरफ एलिवेटेड रोड, करेक्ट। ये चीज सब जगह हर एक स्टेशन पे बनेगी, सब में रूफ प्लाजा, अच्छे से बड़ा वेटिंग एरिया, जितने भी एलिमेंट्स हैं आसपास सब इंटीग्रेट होना चाहिए। आप छोटा स्टेशन लो उधना, उधना में भी वो एलिमेंट सब जगह, रूफ प्लाजा। और ये सोमनाथ की साइड से कौन आता है इधर? है कोई? सोमनाथ की साइड से वेरावल, सोमनाथ, उस तरफ से आप हो, राइट। कितनी सुंदर जगह है, इतना सोच समझ के बिल्कुल मंदिर वाले तरीके से स्टेशन का डिजाइन किया। ये सोमनाथ का मंदिर, अच्छा लगा? आपके एस्पिरेशंस पे 10 आउट ऑफ 10 है या कितना? 11 आउट ऑफ 10। मोदी जी को बता दूं ये? गुड, सुंदर लग रहा है? चलो वेरी गुड, आपने अप्रूव किया तो अच्छा लगा। ये भुज की साइड का, भुज में से कौन है? भुज वाली साइड से है कोई? कैसा है अभी स्टेशन उसके कंपैरिजन में? जोरदार, एकदम जोरदार, ताली बजाओ इनके लिए। इसमें भी रूफ प्लाजा। मैं क्यों बता रहा हूं ये, कि चाहे स्टेशन अहमदाबाद का हो, दिल्ली का हो, सूरत का हो, भुज का हो, जालना का हो, फालना का हो, कहीं का भी हो, छोटे से छोटा स्टेशन हो उसको वर्ल्ड क्लास बनाना। डिफरेंस नहीं करना है कि बड़े स्टेशन पे सारी फैसिलिटी, छोटे स्टेशन पे नहीं, वैसा नहीं है। मोदी जी ने बहुत स्पष्ट बोला है, पीएम साहब ने बहुत स्पष्ट बोला है कि चाहे जो स्टेशन बनाओ उसको वर्ल्ड क्लास ही बनाना है। टाइम लगेगा, बहुत आसान है, फ्री ये सब कह के एकदम कुछ टाइम के लिए रिलीफ दे देना, लेकिन बहुत मेहनत लगती है। एक दम लगा के मेहनत करके ऐसा फाउंडेशन बनाओ जो कई कई वर्षों तक लोगों को बेनिफिट देता रहे। ये हमें याद रखना है।
इजी या मेहनत करके सस्टेनेबल। दुनिया में बहुत सारे देशों ने इजी मनी वाली बात की और उनकी हालत आज कैसी है। आप लोग सब एजुकेटेड बच्चे हो, नौजवान हो, छात्र हो, आप समझते हो इन चीज़ों को। आप देखना आज कुछ कई देश हैं, यूके, उसकी हालत कैसी हो रही है, राइट। पास में श्रीलंका, कैसी हालत हो रही है। और जो मजबूती से सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं वो लोग किस पोजीशन में, ये आप खुद जजमेंट करना, क्योंकि आपकी जनरेशन का प्रश्न है ये प्रश्न केवल हम लोगों का नहीं है, ये प्रश्न है कि आप लोगों की जनरेशन को किस तरह का भविष्य चाहिए, किस तरह का भारत चाहिए, किस तरह की आपकी एम्प्लॉयबिलिटी होगी, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, उसका प्रश्न है। आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखना बहुत जरूरी है। पीएम साहब ने 199 बोला, अब 200 हो गया आज। उसमें से 134 के मास्टर प्लान बन गए करीब करीब। 65 के कंप्लीट डिजाइन अप्रूवल में केवल आर्किटेक्चरल चीज देखने की बात नहीं होती, उसका अंदर से किस तरह का स्ट्रक्चर का डिजाइन है, किस तरह की रूफ प्लाजा बनेगी, किस तरह का आगे ट्रैफिक का डिजाइन है। जो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं कोई? आप हो, राइट। सिविल में कितना कॉम्प्लेक्सिटी के साथ देखना पड़ता है, सारी चीजें, कंप्लीट एस्टिमेट बनाना, कंप्लीट उसका प्लान बनाना। तो वो सब डिजाइन 65 के डिजाइन अप्रूव हो गए, 47 के टेंडर्स हो गए और 34 स्टेशंस पे आज काम चल रहा है। ये रिपोर्ट कार्ड है। अगली बार जब भी हम मिलेंगे इसमें से काफी और चीजें आगे बढ़ गई होंगी। रिपोर्ट कार्ड तो जरूरी है, आपके प्रोफेसर लोग नहीं मांगते, टीचर लोग मांगते हैं ना, तो आप लोग मेरे टीचर हो यहाँ पे। अब मैं आता हूँ वंदे भारत ट्रेन। कितने लोगों ने वीडियो देखा जिसमें 180 के एमपीएच पे वंदे भारत चल रही है और पानी का ग्लास हिला नहीं? कितने लोगों ने देखा? जिन्होंने नहीं देखा वो आज ही इंस्टा पे, रील्स पे जाके देख लेना। क्या पसंद है आजकल? फेसबुक ज्यादा पसंद है या इंस्टा ज्यादा पसंद है? इंस्टाग्राम। इंस्टा ही पसंद है, एकदम क्लियर, 100%। इंस्टा पे, रील्स पे जाके देखना या यूट्यूब पे शॉर्ट्स में देखना। वो वीडियो जिन्होंने नहीं देखा पक्का देखना। जब पीएम साहब ने 14 में जिम्मेदारी संभाली देश की, 15 में उन्होंने कहा कि देश के लिए एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन होनी चाहिए। पुराने जमाने की ट्रेन्स थी, उनका समय हुआ, उन्होंने अपनी सर्विस की, लेकिन अब आगे की जनरेशन के लिए वर्ल्ड क्लास ट्रेन होनी चाहिए। तो पहले इंजीनियर सब जगह वर्ल्ड क्लास बने, जाओ भाई यूरोप जाओ, जापान जाओ, वहां जाके इंपोर्ट करते हैं। मोदी जी ने कहा नहीं, इंपोर्ट नहीं चलेगा। सोचे क्या मतलब है इंपोर्ट नहीं चलेगा? रेलवे के इंजीनियर्स तो आदत रहती थी एक। मोदी साहब ने कहा नहीं, इंपोर्ट तो नहीं चलेगा। फिर पीएम साहब ने कहा कि आपको खुद को डिजाइन करना पड़ेगा। डिजाइन करें वर्ल्ड क्लास ट्रेन, अरे बहुत मुश्किल काम है ये तो। सोचा कि कैसे करेंगे, लेकिन देखो देश के इंजीनियर्स पे, देश के टैलेंट पे जब प्रधानमंत्री जी ने चैलेंज दिया और विश्वास दिया और कॉन्फिडेंस दिया, तो वर्ल्ड क्लास ट्रेन एक्चुअली हमारे इंजीनियर्स ने डिजाइन करके दिखाए। 2019 में पहली 2 ट्रेन पीएम साहब ने लॉन्च की। अब तक वो ट्रेन 18 लाख किलोमीटर चल चुकी है। 18 लाख किलोमीटर। अगर सारी दुनिया की परिक्रमा करो, चारों तरफ घूम लो दुनिया के, तो 45 टाइम्स चारों तरफ घूम चुकी, इतनी चली है। देखो इंजीनियरिंग में क्या होता है, कुछ भी काम करो तो जो मॉडल बनाते हैं या जो पहली चीज बनाते हैं उसको टेस्ट करना होता है, उसको चला के देखना होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आएगी वो समझना होता है, फिर समझ के फिर उसके हिसाब से उसमें इंप्रूवमेंट्स करने होते हैं, राइट। ये होता है ना इंजीनियरिंग का आइटरेशन, जो हम क्लोज लूप बोलते हैं। देखा, टेस्ट किया, फीडबैक आया, ठीक है चलो ठीक है, खराब है चलो चेंज करो, ऐसा होता है कि नहीं, राइट। इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं ये चीज। तो
ये दो ट्रेन करीब करीब बिना कोई बड़ी प्रॉब्लम के एनी मेजर विदाउट एनी मेजर प्रॉब्लम these trains have run for almost 2 years 18 लाख किलोमीटर्स 2019 से चल रही है। टेक्नोलॉजी अपनी तरफ से प्रूव हो गई। फिर जैसे हमारे यहाँ प्रोफेसर्स हैं राइट कि 7 आया स्कोर तो बोलेंगे 7 नहीं 8 लाओ 8 आया ठीक है पर 9 लाओ 9 आया 9 तो ठीक है 10 लाओ राइट। ऐसे ही हमारे पीएम साहब भी अच्छी बनाई है और अच्छी बनाओ और अच्छी बनाओ। हमेशा आगे से आगे की सोचते हैं, हमेशा हमको कहते हैं कि नहीं और बेटर करो और बेटर करो और बेटर करो। तो फिर हम लोगों ने वापस लग पड़े, हम लोग पूरी टीम लगी और वंदे भारत 2 बनाई। वंदे भारत 1 160 kmph, वंदे भारत 2 180 kmph की स्पीड। अभी हमारे ट्रैक्स में काफी चेंजेस करने हैं, पटरियां अभी भी 130 kmph के हिसाब से डिजाइन है तो उसमें भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स अभी करने हैं। आगामी 2-3 सालों में कई इसमें चेंजेस करेंगे, ट्रैक की टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे, कई तरह के नए चेंजेस करेंगे। तो ये जो ट्रेन अभी लॉन्च हुई है 30 तारीख को लॉन्च हुई, बहुत सारे चेंजेस किए हैं उसके डिजाइन में। किस तरह के चेंजेस किए हैं, क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में इसमें बताऊंगा। इसको कहते हैं बोगी। कैसे? जो ट्रक होती है, ट्रक या बस होती है, उसमें नीचे चेसी होता है। देखा आप लोगों ने चेसी? समझते हो चेसी में राइट? चेसी उस गाड़ी को स्ट्रेंथ देती है। गाड़ी की सारी स्ट्रेंथ चेसी पे डिपेंड होती है राइट? वैसे ही ट्रेन में ऊपर कोच होता है, उसकी बॉडी होती है और नीचे होती है बोगी राइट? बोगी सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। ये कंप्लीट बहुत ही इसमें बारीकी से काम करना होता है। इसके अंदर एयर स्प्रिंग लगाई है। इस बार एयर स्प्रिंग से जितने भी ट्रेन में झटके लगते थे वो प्रैक्टिकली फिनिश हो गए। आप अगर इसमें बैठ के देखोगे अभी तो इतना कंफर्ट है, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। वो जो ग्लास था वो क्यों नहीं गिरा? क्योंकि बोगी की डिजाइन इतनी शानदार है। टॉलरेंस समझते हो? टॉलरेंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स टॉलरेंस समझते हो राइट? 2 कंपोनेंट्स के बीच में गैप कितना है, करेक्ट? मैकेनिकल क्या है यहाँ पे? कोई मैकेनिकल नहीं पढ़ते आजकल सब आईटी पढ़ते हैं। तो 2 कंपोनेंट्स के बीच में अगर गैप 3 मिलीमीटर होता था पहले, इसमें 1 मिलीमीटर से कम का गैप रखा गया है। समझिए इतनी फाइन इसकी डिजाइन है, इतनी बारीकी से इसकी डिजाइन की गई है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, सारी दुनिया आज इसको वॉच कर रही है। वो पानी की ग्लास तो नहीं हिली, लेकिन सारी दुनिया हिल गई। सारी दुनिया इस ट्रेन को नोटिस कर रही है। और ऐसी जब 20-40 ट्रेन चल जाएंगी तो सारी दुनिया को हिंदुस्तान से ही सप्लाई होगी। सारी दुनिया में एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से। ये फिनोमिनन है जो कभी हमारे देश में 50, 60, 70 साल तक कभी इस तरह की थॉट प्रोसेस नहीं थी। ऐसा माइंड सेट नहीं था। लोगों के माइंड तो बहुत थे, लेकिन हिंदुस्तान का बेस्ट माइंड चला जाता था बाहर राइट? कभी सोचते ही नहीं थे कि हिंदुस्तान में हम ज्यादा अच्छा काम करें, बेस्ट से बेस्ट काम करें। वो थॉट प्रोसेस ही नहीं था। जब पीएम साहब ने चालू किया मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन 3 प्रोग्राम से नई अपॉर्चुनिटीज निकली। इन 3 चीजों से एक नया कॉन्फिडेंस आया राइट? और फिर 8 पे पहुंचे, CGPA 8 आया। 8 नहीं चलेगा और लाओ। तो अभी हमको टारगेट दिया है कि वंदे 2 अच्छी है, वंदे 3 उससे भी बेटर बनाओ। तो हम लोग लगे हुए अभी वंदे 3 के डिजाइन में। ये वंदे 3 की डिजाइन होगी। ये 200 kmph पे चलेगी और तब तक ट्रैक्स भी काफी अपग्रेड हो गए होंगे। और इसमें कंप्लीट इसका जो बॉडी का डिजाइन है, इस बार सारा फोकस जाएगा बॉडी के डिजाइन पे। ये कंप्लीट जो बॉडी का डिजाइन है, बोगी तो बहुत अच्छी बन गई अभी
बोगी का डिजाइन बहुत परफेक्ट हो गया। अब कंप्लीट फोकस जाएगा बॉडी के डिजाइन पे। एकदम लाइट वेट एल्यूमिनियम की बॉडी बनेगी वंदे 3 में, एकदम लाइट वेट एल्यूमिनियम की बॉडी बनेगी और उसके बीच में वैक्यूम रहेगा। यानी एल्यूमिनियम के समझो अगर 2 पीस है, 2 पीस के बीच में वैक्यूम इस तरह का। ये टोटली नई टेक्नोलॉजी है। जितनी बुलेट ट्रेन है, जितनी बहुत ही मोस्ट एडवांस ट्रेन्स हैं, उन सब ट्रेन्स में वो वाली टेक्नोलॉजी रहती है। वो टेक्नोलॉजी अभी अपने वंदे 3 में आएगी, राइट। वंदे 2 से भी और बेटर करने का प्लान है और इसका लॉन्च होगा 2025 में लॉन्च होगा इसका। अभी डिजाइन वर्क चल रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन होगी इसकी। एक एक कंपोनेंट, एक एक सिस्टम, सबका आपस में इंटीग्रेशन बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, राइट, क्योंकि ह्यूमन सेफ्टी इससे एसोसिएटेड है। तो ये वंदे 3 इस तरह से रेलवे में हर एक फील्ड में, चाहे स्टेशन हो, चाहे ट्रेन्स हो, चाहे ट्रैक्स हो, चाहे किसी भी चीज को देखो, हर जगह हिंदुस्तान की बनी टेक्नोलॉजी, अपने देश की बनी टेक्नोलॉजी, आपकी जनरेशन के लिए सुटेबल टेक्नोलॉजी, आपकी जनरेशन के लिए सुटेबल डिजाइन्स और आपके भविष्य के लिए क्या जरूरत पड़ेगी वो सोच के काम किया जा रहा है। अभी कवच का नाम किसने सुना? नाम सुना? वीडियो देखा जिसमें आपने सुना? क्या नाम आपका? शुभम पांडे। शुभम, क्या है कवच? एंटी कोलिशन सिस्टम है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। शुभम के लिए ताली बजाया। ये टेक्नोलॉजी बनाई रेलवे के इंजीनियर्स ने, इसका नाम है कवच। और अब एज वी स्पीक 3000 किलोमीटर पे इसके टेंडर हो चुके हैं और इंस्टॉलेशन चालू हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। ट्रेन के चारों तरफ एक तरीके से सेफ्टी का एनवेलप बना लेती है और 2 ट्रेन अगर एक साथ आती है तो 380 मीटर पे ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाता है। तो इसकी टेस्टिंग के लिए, मैं तो इंजीनियर हूं, तो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग को तो एक रहता है ना कीड़ा, तो रहता है कि गुड टेस्ट करनी चाहिए। तो टेस्टिंग के लिए गए सिकंदराबाद। तो जाओ, पूरे रास्ते में जनरल मैनेजर साहब बोलते रहे कि साहब आप मत चढ़ो इसमें गाड़ी में, आप मत जाओ, मैंने हम कर लेंगे ना टेस्टिंग। चक्कर क्या है, क्यों मना कर रहे हैं? बार बार मना कर रहे, नहीं सर आप मत जाओ ना, आप मत बैठो, हम कर लेंगे टेस्टिंग। तो फिर हमने कहा ठीक है, एक तरफ मैं बैठूंगा, दूसरी ट्रेन में बैठेंगे हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब। अगर दूसरी तरफ मंत्री बैठे होते दूसरे, तो एक ही बार में लेकिन बहुत सक्सेसफुल टेस्ट हुआ। ये देखो चलेगी है। सेम ट्रैक पे 2, एक तरफ से चेयरमैन साहब आ रहे थे, एक तरफ मैं बैठा था। सेम ट्रैक पे दोनों गाड़ियां आ रही, देखिए एग्जैक्टली 380 मीटर पे दोनों गाड़ियां एग्जैक्टली वहां पे रुकी। What an experience it was! I cannot share it with you. It was like surreal. जैसे ना वो जो ब्रेक होता है, इसमें पांव से ब्रेक नहीं होता है, हाथ में होता है ब्रेक, राइट? तो हम लोग क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि ड्राइवर कहीं इसको ब्रेक तो नहीं लगा देगा। लोको पायलट ने ब्रेक नहीं लगाया, कवच ने अपना ब्रेक का इस तरह का लीवर होता है, राइट, अपने आप कोई टच नहीं किया हुआ, उसको अपने आप ब्रेक लग रहा है। वो भूतों वाली फिल्में देखते थे ना, दरवाजा साए साए हवा चल रही है, अचानक दरवाजा डर लगा। वाकई अमेजिंग एक्सपीरियंस था। कोई हाथ नहीं टच किया, कोई पाँव टच नहीं किया, कोई ब्रेक के पास नहीं है। मतलब मैं तो ऐसे देख रहा था ड्राइवर की तरफ, वो कहीं खट कहीं से पाँव दबा देगा कुछ, कहीं नहीं कहीं कुछ नहीं दबाया। कवच ने एग्जैक्टली
380 मीटर्स पे अपने आप ब्रेक लगाए। That's the beauty of technology. That's the power of technology, right? That's the technology made in India, designed in India, designed for all of you. हम लोगों की जनरेशन ने ये सब चीजें नहीं देखी थी, आप लोगों के लिए ये सारी सेफ ट्रेन्स, अच्छी ट्रेन्स, अच्छे स्टेशंस, बहुत कैपेसिटी बढ़ानी है। अभी तो काम कम नहीं है, काम बहुत है इसमें, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके होगा, लेकिन सही दिशा में। बुलेट ट्रेन टोटली नए तरीके का कंस्ट्रक्शन का काम, टोटली नई तरह की टेक्नोलॉजी। आप में से कितने लोग बड़ौदा से हैं? काफी लोग। कितने लोग आनंद से हैं? कितने लोग सूरत से हैं? जितने भी रास्ते से वापी से लेके अहमदाबाद तक के रास्ते में जितने भी जिले हैं, हर जिले में तेजी से काम चल रहा है। 92 किलोमीटर के पिलर्स अभी तक बन गए। इसका काम देखने को गया आप में से? आपने देखा कैसा है काम? क्या नाम है आपका? थोड़ा सा बताओ इसका बारे में। थोड़ा पास में जाके अगली बार देखना। आप चाहो तो अपने कॉलेज की तरफ से, ध्रुव भाई, आप चाहो तो कॉलेज की तरफ से प्रॉपर एक स्टडी टूर कर सकते हो, हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे। डीआरएम साहब हैं यहाँ पे, डीआरएम साहब से आप कोऑर्डिनेट करके कभी भी एक स्टडी टूर करोगे। देखना चाहोगे? एकदम नई टेक्नोलॉजी, इतना मजा आएगा, इट्स रियल फन, इट्स वेरी थ्रिलिंग। एक टोटली नए तरीके से काम हो रहा है। ये आनंद डिस्ट्रिक्ट, ये बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट, ये माही रिवर के ऊपर ब्रिज। वैसे 8 नदियां हैं, हर एक रिवर पे एक नया ब्रिज बन रहा है इसका। ये फुल स्पैन कास्टिंग यार्ड, जितनी बड़ी बड़ी मशीनें आप देख रहे हो ना, सारी मशीनें पहले तो बाहर से लाए और फिर अपना दिमाग लगा के हिंदुस्तान में बनाई, सारी की सारी मशीनें। ये फुल स्पैन 40 मीटर का गर्डर बन रहा है। ये कंप्लीट यहां से यहां तक 40 मीटर यानी 130 फुट के आसपास, राइट? अंदाज लगाओ इसका वजन कितना होगा। 40 मीटर का गर्डर। गर्डर समझते हो ना? समझते हो गर्डर? नहीं तो मैं आगे दिखाता हूँ गर्डर। ये रहा, ये गर्डर, ये पूरा गर्डर है। पूरा पिलर्स जो आपने देखे थे ना अभी पहले, इन पिलर्स के ऊपर रखा जाएगा। ये जो पिलर्स देखे आपने, ये 2 पिलर्स के बीच में एक गर्डर लगेगा, बराबर है? इन 2 पिलर्स के ऊपर एक गर्डर लगेगा, उस गर्डर के ऊपर पटरी बनेगी, उस पटरी के ऊपर ट्रेन दौड़ेगी। ये टेक्नोलॉजी है, राइट? तो एक पिलर, 2 पिलर, 2 के बीच में 40 मीटर का गैप है। 40 मीटर के गैप में एक गर्डर लगेगा, फिर इसके आगे वाला, फिर वही 40 मीटर का गैप, राइट? इस तरह की कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी है। अंदाजा लगाओ एक गर्डर की वजन कितनी होगी। ये वाला गर्डर जो इसको एक बड़ी सी क्रेन उठा रही है ना, हाँ करेक्ट है, अंदाजन आसपास कितना? 1100 टन, 1100 टन, 1100 टन, 1100 टन का अंदाजा लगाओ। एक ट्रक कितना टन लेके जाती है? 20 टन। बड़ी ट्रक जो होती है डाले वाली, छोटी में 20 ट्रक लेके जाती, राइट? तो 20 ट्रक के हिसाब से कितने ट्रक? 50 ट्रक लेके जाएगी तो 1000 टन होता है। 50 ट्रक लेके जाए, उतना भारी एक अकेला ये गर्डर, उसको ये क्रेन उठा रही है, और क्रेन पहले लेके आया बाहर से, बाद में सारी अपने यहाँ कंप्लीट हिंदुस्तान में बन रही है, राइट? पूरी टेक्नोलॉजी किस तरह से इसकी, ये क्रेन पूरी की पूरी इसको उठाएगा गर्डर को,
पूरा गर्डर एक बार में बना और उसके बाद में पिलर के पास लेके जाएगा। पिलर के ऊपर ये ट्रांसपोर्टर है। वो बचपन में अपने गांव में होता था ना, कान खजूरा, समझे? कान खजूरा क्या होता था? कान खजूरा कट 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 ऐसे चलता था। कितने सारे पांव होते थे उसके, 100 पांव होते थे। इस कान खजूरे के कितने पांव है? 216 216 पहिए हैं इस गाड़ी के। 1000 टन इसको उठा के चलाना है, राइट? अब ये गर्डर आया, इस क्रेन ने उठाया, क्रेन ने उठा के, इस वाले क्रेन ने उठाया, इसके ऊपर रखा और इसके ऊपर से गर्डर इस पिलर से इस पिलर के बीच में अभी गैप है, राइट? दिख रहा है? इस पिलर से इस पिलर के बीच में गैप है। तो यहां से उठा के गर्डर को अब यहां तक रखेगा, यानी एक के बाद एक पिलर, एक पिलर, एक पिलर, एक पिलर, इस तरह से आगे 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 कंस्ट्रक्शन होता रहेगा। ये यहां से होता हुआ आया है। एक पिलर रखा, इसके आगे से चल के इस पिलर पे आए, इसके आगे से चल इसके आगे चल के इस पिलर पे आए, फिर अगला पिलर, और इस तरह से कंटिन्यूएशन। ऐसी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में कुल मिला के सिर्फ 4 देशों के पास है। सिर्फ 4 देशों के पास ऐसी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, और ये सब आप सबके लिए। हम लोग तो इस दुनिया से निकल जाएंगे तब तक, राइट? आप लोगों की जनरेशन अब तो हिंदुस्तान में। अब मैं आता हूं ट्रेन से दूसरी जगह, सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर आप सबने देखा होगा, नहीं देखा? सेमीकंडक्टर के वेफर, बालाजी के वेफर खाए हैं? ऐसा ही ये भी वेफर है, सेमीकंडक्टर का वेफर है, राइट? इसमें चिप्स बनती हैं, आलू की चिप्स नहीं, सेमीकंडक्टर की चिप्स। हर एक चीज आप जानते हो, आप सब मेरे से ज्यादा एजुकेटेड हो, हर एक चीज में आजकल सेमीकंडक्टर की चिप्स लगती है। चाहे वो मोबाइल फोन हो, ट्रेन हो, मिसाइल हो, घर में एयर कंडीशनर हो, कोई भी चीज हो, ये कैमरा आपके सामने जो खड़ा है, ये मेरे हाथ में माइक है, हर एक चीज में, ऑटोमोबाइल में, कार में, स्कूटर में, हर चीज में सेमीकंडक्टर की चिप्स लगती है, राइट? सेमीकंडक्टर हिंदुस्तान में बने, ये देश का बहुत वर्षों से ड्रीम था। 30-40 वर्षों से कोशिश कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर हिंदुस्तान में बने। बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, और इसको ढंग से अगर सोचो तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी हमको जरूरत क्यों है। आप सोचो, आज से 10 साल पहले हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नाम के वास्ते थी, प्रैक्टिकली कुछ भी नील के बराबर होती थी। मोबाइल फोन सारे इंपोर्ट होते थे, हर चीज प्रैक्टिकली इंपोर्ट होती थी। सोचते भी नहीं थे कि कोई हिंदुस्तान में इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो सकेगी। आज बिकॉज ऑफ मेक इन इंडिया, बिकॉज ऑफ स्टार्टअप इंडिया, बिकॉज ऑफ डिजिटल इंडिया, इन 3 प्रोग्राम्स के कारण आज हिंदुस्तान में $80 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, $80 बिलियन। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें रोजगार कितना है। $80 बिलियन की इंडस्ट्री में बोलूं उसका कोई मतलब नहीं है, वो एक तरफ है। रोजगार है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख 25 लाख रोजगार आज है, आज as we speak, and this industry is growing at a rate of 17 to 18% per annum। 80 बिलियन से ये 300 बिलियन की तरफ जाएगी अगले 5 सालों में। और रोजगार जो 25 लाख है आज, वो 25 लाख रोजगार 1 करोड़ रोजगार की तरफ जाएगा, और ये कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है। इसके पीछे कंटिन्यूस हमारी मॉनिटरिंग, पीएम साहब कंटिन्यूसली फोकस करके रखते हैं। अभी बहुत जल्दी आने वाले दिनों में, आगामी दिनों में, विद इन फ्यू वीक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा एक्सटेंड करें, किस तरह से उसके ऊपर एक अप्रूवल होगा। इन इलेक्ट्रॉनिक्स की हर एक चीज में सेमीकंडक्टर लगता है।
तो सबसे बेसिक जो रॉ मटेरियल है वो मैन्युफैक्चरिंग होगी, तभी जाके देश में और ज्यादा चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होगी। और जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब नए प्लांट लगते हैं, नई फैक्ट्री लगती है, तब नया रोजगार क्रिएट होता है, नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। ये साइकिल है, इस साइकिल को चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? कॉज इफेक्ट है ये। अगर हम फोकस करके इन्वेस्टमेंट लाएंगे तभी जाके नए रोजगार सृजन होंगे। तो सारा का सारा फोकस है नए इन्वेस्टमेंट्स लाने में। उसी थॉट प्रोसेस के साथ काम कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ही अच्छा प्लान बना है। प्लान बन के ऑलरेडी अप्रूवल्स की स्टेज पे आ गया अभी, और आने वाले कुछ ही टाइम में पहली सेमीकंडक्टर फैब देश में लगेगी। और कई वर्षों का जो ये ड्रीम है, ये ड्रीम पूरा होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर के प्लांट के, आपने किसी ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट देखा है या वीडियो देखा उसका? वीडियो देखा? देखने की चीज है, इतनी बारीकी से काम होता है और हजारों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं। अभी एक प्लांट लगने वाला है जल्दी एप्पल का, जिसमें एक प्लांट में, एक फैक्ट्री में 60,000 लोग एक साथ काम करेंगे। फैक्ट्री बन गई ऑलरेडी और उसमें पहला बैच ऑलरेडी लग चुका है। और एक फैक्ट्री, अकेली फैक्ट्री में 60,000 लोग काम करेंगे। इस तरह की पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। और उसी पोटेंशियल को हम लोग पीएम साहब बहुत फोकस के साथ, मतलब कोई भी दुनिया से किसी भी हिस्से से जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का व्यक्ति आता है, पीएम साहब टाइम निकालते हैं उसके लिए। 1 घंटा चाहिए 1 घंटा, 2 घंटा चाहिए 2 घंटा, क्योंकि उसमें आप अब मैं आता हूं टेलीकॉम के 5G। देखा अभी रिसेंटली 5G लॉन्च हुआ। आपने अगर नोटिस किया हो, सुनील मित्तल एयरटेल के जो प्रमोटर हैं, देखा उनका भाषण क्या था? उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में कभी मैंने नहीं सोचा था कि भारत में टेलीकॉम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, लेकिन ये इम्पॉसिबल ड्रीम सच हुआ क्योंकि मोदी जी ने मेक इन इंडिया का प्रोग्राम, आप देखना उनका स्पीच, वाकई इम्पॉसिबल चीज थी। क्यों? दुनिया में सिर्फ 5 देश ऐसे हैं, सिर्फ 5 कंपनीज ऐसी है जो टेलीकॉम के टेक्नोलॉजी एंड टू एंड जिनके पास है, सिर्फ 5। ऐसे में चैलेंज करके नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना और उस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करके आगे बढ़ाने की क्षमता लाना छोटी बात नहीं है। जैसे वंदे भारत में पीएम साहब ने भारत के इंजीनियर्स पे विश्वास किया, कॉन्फिडेंस दिखाया और बड़ा चैलेंज दिया, वैसे टेलीकॉम में भी मोदी जी ने चैलेंज दिया कि 4G और 5G की टेक्नोलॉजी पूरी भारत में बनाओ। बहुत मुश्किल काम था, हिमालय पे चढ़ने जैसा काम था, लेकिन जो उन्होंने विश्वास रखा कि नहीं, 1 साल लगे तो लगे, 2 साल लगे तो लगे, लेकिन इंपोर्ट करके नहीं लाएंगे, हम अपने ही देश में पूरी 5G की टेक्नोलॉजी बनाएंगे, 4G की पूरी टेक्नोलॉजी बनाएंगे, देश के अंदर तो लगेगी ही लगेगी, दुनिया भर में उसको एक्सपोर्ट करेंगे। ये थॉट प्रोसेस है, जिस थॉट प्रोसेस के साथ काम चल रहा है। ये है टावर, ये टेलीकॉम का टावर है। इस टावर के ऊपर जो देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं? रेडियो, राइट? ये रेडियो है। रेडियो, इसी के अंदर एंटीना भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, काफी सारी चीजें, इसको रेडियो बोलते हैं बेसिकली, रेडियो यूनिट कहते हैं इसको। सबसे कॉम्प्लेक्स डिवाइस है। किस तरह से उसका बीम बनेगा, कितना पावर से जाना है, और एक साथ 100-200 कनेक्शन एक साथ एक टावर में, एक जगह कई बार तो 300 400 कनेक्शन, जो बड़े शहर के अंदर एकदम डेंस एरिया है, या फिर एक साथ जैसे मान लो मेट्रो से खूब सारे लोग उतरे या ट्रेन से एक साथ उतरे 1000 लोग, सब उतरते ही पहले फोन करेंगे ना अपने कि वो पहुंच ही गए थे
हूँ पहुंच ही गया राइट। तो गाड़ी इधर लेके आ जाओ भाई, या फोन करते ना कि अपने बेटा मैं पहुंच गया, बस अभी गाड़ी लगा लेना, सामने ले आना। स्कूटर वहां पे कहाँ खड़ा बेटा? अच्छा वो पार्किंग के पैसे बचाने थे। होता है ना ऐसा। तो सीधे एक साथ खूब सारे फोन होते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी को मास्टर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को मास्टर करके, उस टेक्नोलॉजी को प्रूव करके, डेवलप करके हिंदुस्तान में बना 4G और 5G आज अपने पास रेडी है, और वही अब देश में डिप्लॉय होगा और दुनिया भर में एक्सपोर्ट होगा। अभी थोड़े दिन पहले G20 समझते हो आप? G20 ग्रुप ऑफ 20 जो सबसे बड़े देश है 20, उसमें से हिंदुस्तान आज 5वें नंबर पे है। तो बड़े देशों में से हमारी गिनती होती है राइट। तो G20 के मिनिस्टर्स से जब मैं मिला, एक मिनिस्टर वेट कर रहा है कि कब हिंदुस्तान का 4G 5G का सोल्यूशन हमारे देशों में लगेगा। ये आप सबका भविष्य, ये आप सबके सामने, और ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये आज है, आज है। आपको इसको लेके आगे जाना है 6G की तरफ। आपको हम लोग 4G 5G पे आपको छोड़ के दे रहे हैं, आपको इसको 6G पे लेके जाना है। ये आपकी जनरेशन का काम है राइट। आप लोग यंग स्टूडेंट्स हो, आप इससे कॉलेज कंप्लीट करके किसी न किसी जॉब में लगोगे, किसी न किसी में अपना खुद का काम करोगे। आप सबकी जिम्मेदारी है इसको, इसी टेक्नोलॉजी को, इसी इनिशिएटिव को, इसी मोटिव को बना के रखना। ये 5G का रेडियो थोड़ा एक उसमें सब काफी क्लटर था, इस तरह का रेडियो होता है राइट। कंप्लीट भारत में डिजाइन, भारत में बना हुआ और भारत में डिप्लॉय होगा। 5 स्टार्टअप्स लगाए हमने, 5 स्टार्टअप्स को चैलेंज दिया, बना के दिखाओ। किसी का अच्छा बना, किसी का कम बना, कोई और मेहनत कर रहा अभी भी, लेकिन बन के आ गया। और एक नहीं 5। ये चैलेंज आप सबके ब्रेन का, आप सबके टैलेंट का ये एग्जाम्पल है राइट। अब मैं लास्ट स्लाइड पे हूं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का दायित्व संभाला, भारत का नंबर था 10वें नंबर पे। देश के, दुनिया के सारे देशों की जब ऐसे लिस्ट बनती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 10वें नंबर पे था। काम चालू हुआ, जिस स्पीड से काम किया, पहले 10 से 9 पे हुए, 9 से फिर 8 पे आए, इटली को पीछे छोड़ा, स्पेन को पीछे छोड़ा, आगे बढ़ते गए, ब्राजील को पीछे छोड़ा, आगे बढ़ते गए, रशिया को पीछे छोड़ा, आगे बढ़ते गए, और अभी हाल ही में जिस देश ने कभी एक